Okay, good morning. Let's continue. Yesterday we discussed about some of the topics that we covered in chapter 1. So let's continue with the revision part of the chapter. Today we'll start up with operating systems. Operating system may very first thing we should know is what is an operating system. Now कंप्यूटर needs to communicate with both in hardware and software. Operating system क्या है? एक ऐसा system which acts as interface between user and hardware. This line is important. Operating system user और hardware के बीच में एक interface है, एक link है. User, whatever user want to do, it will pass on the things through a software. They must be doing through a software. And that goes to operating system. Then operating system makes the hardware works according to the instructions sent by the users. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में. ठीक है. Then you should know the names of these operating system, popular operating systems. That's Windows, Linux, Unix, Mac OS, right? MS-DOS, Solaris, etc. So then what all things which are done by operating system, इसमें इसके basic 5 functions हैं, right? First of all is communication, then it is resource management, then process management, file management and memory management, right? Communication का मतलब पहला चीज है communication between peripheral devices और internet. जितने भी peripheral devices उनमें peripherals होते हैं, all the components attached to the CPU like mouse, keyboard, right? Your monitor, speakers, etc. These are all peripherals. So how these peripherals they will communicate with CPU? This process is managed by operating system. How this is managed? Whatever peripheral, whichever is installed inside it is whenever a peripheral is attached with the CPU, हर peripheral का एक software होता है, special software, उसको हम driver बोलते हैं. It is a special software which helps the CPU to communicate with that particular device, right? जैसे printer है, मान लो आपने printer attach किया है अपने CPU के साथ, तो printer तब तक commands नहीं ले पाएगा जब तक हम printer का जो driver software है install नहीं कर लेते. ठीक है. Mouse, keyboard भी तब तक नहीं काम कर पाएंगे अगर if we don't have the driver software installed inside that CPU program, right? तो ये communication वाला काम operating system करता है, and this is done with the help of these driver softwares, right? Then second category is resource management. Resource management means managing all sort of resources, right? So resources का मतलब memory, CPU time, files, storage, input output devices, ये सारे resources हैं. इनको मैनेज करना, मेमोरी कैसे मैनेज करनी है, CPU टाइम कैसे मैनेज करना है, किस प्रोसेस को कब टाइम अलॉट करना है, कौन सी फाइल जो है उसको आपने प्रोसेस करना है, कौन सी फाइल को पहले करना है बाद में करना है. अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज मान लो हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो उस पेन ड्राइव को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट? एंड व्हेन many type of input and output devices are attached, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, तो इनपुट को कैसे मैनेज करना है कि माउस वाला इनपुट पहले होगा या कीबोर्ड वाला पहले होगा. तो ये सारी चीजें हैं रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज में कब कौन सी रिसोर्स को एलोकेट करना है, कब किस सोर्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन इम्पोर्टेंट है कौन अनइम्पोर्टेंट है, तो ये सारा का सारा काम जो है मैनेज करना का काम रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है. And that is all done by operating system. Next category is process management. Process is a program currently executing in the memory.
या वेटिंग भी हो सकता है। कि कोई भी प्रोग्राम अगर कंप्यूटर मेमोरी में चल रहा है, मेमोरी मतलब रैम में चल रहा है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट ओनली वन प्रोसेस इज देयर इन सीपीयू, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, राइट। और कुछ प्रोसेस वेटिंग में भी रहेंगी हमेशा, राइट। कुछ प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ प्रोसेस वेटिंग में होती हैं। अब इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है? This operating system manages, controls, schedules all the process. Scheduling is very important. Scheduling का मतलब वही है कौन सी प्रोसेस पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, राइट। क्योंकि इसमें टाइम अलॉटमेंट होता है, बिकॉज ultimate goal is that computer should do the work in as fast as it could perform the task. So speed is to be maintained. So for that reason, scheduling is very important. It decides which process gets the processor and for how long, right? किस प्रोसेस को प्रोसेसर देना है और कितनी देर के लिए देना है, ये सब वो डिसाइड करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। एज वी नो दैट कंप्यूटर मेमोरी comes in various forms. सबसे इम्पोर्टेंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज सारी वर्किंग जो है वो रैम के अंदर होती है। रैम को इसीलिए वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। जितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है सब रैम में लोड होंगी, फिर हम प्रोसेस करेंगे। अब ये मेमोरी मैनेजमेंट में यही आता है, मेमोरी एलोकेट करना, कब रैम की मेमोरी किस प्रोसेस को देनी है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, राइट। एंड देन not only this, it also manages the other kinds of memories like अगर सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, अगर ये सब चीजें भी है सीपीयू में, उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज आल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। Then we have file management. File management में we know that all sort of data present in the computers are stored in the form of files and folders. Folders are directories. ठीक है, folders and directories को बोलते हैं folders, जिसके अंदर files होती हैं, और इन files को manage करना भी बड़ा tedious task है, right? Basic tasks that user needs to perform in the files is creation of the file, renaming of the file, डिलीशन ऑफ द फाइल, कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ द फाइल। तो ये कुछ टास्क हैं जो फाइल से रिलेटेड हैं। इन सबको भी कंप्यूटर में मैनेज करना है, तो दैट फॉर दैट वी नीड अ सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू काइंड्स ऑफ सिस्टम। एक फैट सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल, एंड एक NTFS सिस्टम है जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की मदद से उन सारी फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इसमें क्या क्या होता है? फाइल्स को स्टोर करना, फाइल्स को क्रिएट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, मूव करना या कॉपी करना, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द ऑपरेशंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। देन वी कम टू टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, राइट। सिंगल टास्किंग, टास्क का मतलब है वर्क। When one task can only work at one time, it is called as single tasking operating system. So it allows only execution of a single program. Only one program can run at one time. So if we have such kind of operating system, in that case we call it as single task operating system. Multitask means many tasks, more than one programs, they can work simultaneously, right? तो इसमें क्या होगा, जो प्रोसेसर का टाइम है सारे टास्क को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि सब इक्वल लेवल पे परफॉर्म कर सके। ऐसे ही सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ओनली वन यूजर कैन यूज, एंड मल्टी यूजर्स मेनी यूजर्स कैन यूज एट वन टाइम। रियल टाइम, it ensures that the response time is fixed, right? फॉर एग्जाम्पल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। अब यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में होता क्या है कि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स द सिस्टम हैज टू फायर द मिसाइल,
जैसे सिग्नल मिला एयरक्राफ्ट को मिसाइल सिस्टम को, तो मिसाइल सिस्टम को अपना मिसाइल फायर करना है, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो यू नो दैट प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड। सो वी नीड अ सिस्टम जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करे। ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स टाइम जिनका फिक्स्ड है कि भाई रिस्पॉन्स टाइम इतने माइक्रो सेकेंड्स, मतलब उतने माइक्रो सेकेंड्स में ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो द सच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? So it is used where the application needs to be processed quickly, जिसमें quickly फटाफट application को process किया जा सके without any delay, जिसमें delay ना हो। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे there is no delay and the response time is fixed, right? Next one is the batch processing system, where you see all similar kind of jobs, they are clubbed together, जो एक साथ एक जैसी जॉब्स को क्लब कर दिया जाता है, एक कंबाइंड क्लब करके एक ब्लॉक बना देते हैं। फिर उस ब्लॉक को प्रोसेसर को दे दिया जाता है, फिर प्रोसेसर क्या करता है, उस ब्लॉक में से एक एक करके वन बाय वन उन सारे जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? एलोकेशन इज गिवन एंड देन clubbing of job is done and block is allotted to the processor for execution, and each job is picked one by one and executed. Fine. So that all about this session. Next we have networking and internet. अब इसमें ये जो evolution of history and networks और internet है, this is more important. We should know about this. यहाँ पे इन्होंने दिया है right from the starting के पहले telephone lines were established in 1877, right? PSTN network was formed, public switch network, telephone network, right? Fine. So it uses circuit switching technique, where dedicated connections were there between two parties and then communication takes place. मतलब दो parties के बीच में जो receiver और sender है उनके बीच में direct connections होते थे, जिसकी वजह से communication हो पाती थी। So what happened, like in 1969, this technique was developed, where ARPANET was the first network which was formed, and it allows connection between 4 different computers at 2 locations. उन्होंने क्या किया कि टेलीफोन नेटवर्क को ही यूज किया और पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज की, सर्किट स्विचिंग नहीं की थी। सर्किट में दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, यहाँ पैकेट स्विचिंग की थी, जहाँ पे पैकेट स्विचिंग में होता है कि जो डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स, राइट? सो स्मॉल पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करके देन इट इज ट्रांसफर्ड, राइट? So this was how internet started. So that was the first network which was formed in 1969. So but it was non-commercial. The use was non-commercial, मतलब normal लोगों के लिए नहीं था ये सिर्फ military और research work के लिए use किया जाता था ये network. Then subsequently they allowed many educational institutes also to join. तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा increase होना शुरू हुआ। जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें 1980 का दिया है, तो यहाँ पे नेटवर्क काफी ग्रो कर गया है। दिस वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड होता, देन ये कुछ और लिंक्स जुड़े, ये इवन लंदन तक का लिंक जुड़ गया है। तो मैनी द नेटवर्क्स कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट? देन व्हाट हैपेंड इन 1917, दिस TCP/IP concept was there. ये TCP/IP क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा रूल्स का सिस्टम है जिसमें सारा प्रोसेस जो है वो मैनेज किया जा सकता था इजीली। और इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सेटअप हुए। इसकी वजह से क्या होता था कि जो ट्रांसमिशन था डेटा का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में,
पैकेट्स में डिवाइड करना। टीसीपी का काम होता है डिवीजन करना पैकेट्स की, आईपी का काम है रूट्स निकालना। इट वाज इजी फॉर देम टू ट्रांसफर द डेटा, राइट। एंड मोर ओवर देन अनदर लार्जर नेटवर्क वाज फॉर्म्ड। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड बन गए थे, उनको भी ज्वाइन करके एक बड़ा नेटवर्क एनएसएफ नेट बनाया गया था 1984 में। ये नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शुरू किया था। तो फिर क्या किया उन्होंने, लास्ट में जो आरपानेट जो डेवलप किया था और एनएसएफ नेट, दोनों नेटवर्क्स को जोड़ दिया गया। व्हेन दे वर जॉइंड दे वर इंटरकनेक्टेड, तो उससे एक वर्ल्ड वाइड बड़ा नेटवर्क बन गया जो पूरे इंटायर वर्ल्ड को कवर कर गया, राइट। सो दिस इज हाउ इंटरनेट स्टार्टेड, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट। और फिर 1990s में द नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स मतलब जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो बढ़ते चले गए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस मिल गया। ISPs they joined hand, ISP internet service providers they come into this thing internet also, and then internet में बहुत सारी applications involve हो गई, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब 1990s में आया। उससे क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ी इजी हो गई मैनेज करनी, राइट। रिमोट लॉगिन था, फाइल ट्रांसफर था, ईमेल सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें एडअप होती 1990s में जाके ये एडअप हो गई। So this is how internet started and grew, right? Then we'll talk about what are computer networks. इसमें important क्या है? सबसे important है definition, क्योंकि इसमें एक nodes क्या होता है या stations क्या होता है पता होना चाहिए। जो भी device एक network के अंदर connected है उसको node बोलते हैं या station बोलते हैं, ठीक है। डिवाइस का मतलब कंप्यूटर अकेला नहीं है, डिवाइस का मतलब कुछ भी, कंप्यूटर भी, प्रिंटर्स भी, फैक्स मशीन्स भी, टेलीफोन्स भी, कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो, राइट। सो फिर इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक तो व्हाट इज अ सेंडर, सेंडर इज द मशीन और द डिवाइस व्हिच इज सेंडिंग अ मैसेज, रिसीवर इज द वन हु इज गेटिंग इट, एंड द मैसेज हैज टू ट्रैवल फ्रॉम अ प्रॉपर चैनल, राइट। चैनल एक सपोर्ट है जिसके थ्रू मैसेज जाता है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, सेंडर इज सेंडिंग टू रिसीवर, दैट्स इट। इसको बोलते हैं सिंपलेक्स मोड, राइट। उसके बाद वी हैव हाफ डुप्लेक्स मोड, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क्स डेटा ट्रांसमिटेड यूजिंग many fiber optic and satellite is the simplest an example. So when we transmit data through fiber optic cables or through satellite, that is all simplex mode. We are sending data from our computer to that satellite, right. हाफ डुप्लेक्स में है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों तरफ, राइट। So one sender can send a message and the receiver can respond back also, right. But the problem is in half duplex, only one thing can be done at one time, like sender and sending a message to the receiver। उस टाइम पे रिसीवर वापस नहीं भेज सकता। जब ये मैसेज यहाँ डिलीवर हो जाएगा, ये चैनल फ्री हो जाएगा, तब रिसीवर वापस कर सकता है, राइट। तो ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन था। फुल डुप्लेक्स में होता है कि बोथ कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज एट द सेम टाइम, ठीक है। सेंडर उसी टाइम पे भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, तो चैनल इसमें ब्रॉडर है फुल डुप्लेक्स मोड में, राइट। उसके बाद ये लेंथी क्वेश्चंस में बहुत बार आया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। पहली चीज रिसोर्स शेयरिंग करनी, मतलब हम प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर्स को शेयर कर सकते हैं, मेमोरी वी कैन शेयर, राइट। वी कैन आल्सो शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। फाइल्स कैन बी शेयर्ड व्हिच आर इन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फॉर्म, राइट। सो sharing is the first important task, then communication is another important option available. Since computers they are connected, so information can be exchanged between different nodes, right। ये एक अच्छा एडवांटेज है। ये दो एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा। ट्रांसमिशन मीडियम किस चैनल के ट्रांसमिट होना है, दो तरह के चैनल्स हैं, गाइडेड है, एक अनगाइडेड है। गाइडेड होता है वायर वाला, अनगाइडेड होता है वायरलेस,
गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये कुछ टाइप्स ऑफ केबल्स हैं। अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, these are the technologies which are used. Then is what is topology? अब यहाँ पे टोपोलॉजीज में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टोपोलॉजीज जितनी भी हैं इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है, सेकेंडली इनकी एडवांटेजेस क्या है और इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट? सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी अवेयर विद दिस। पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या है, it requires less cabling, this is the advantage, it is easy to install and extend, right? So cables इसमें कम लगती हैं क्योंकि एक सेंट्रलाइज केबल होती है, बैकबोन केबल होती है, और इंस्टॉल करना इजी है, एक्सटेंड करना इजी है, राइट? बट डिसएडवांटेज क्या है कि फॉल्ट डिटेक्ट करना, आइसोलेट करना इज डिफिकल्ट, फाइन? Detection of fault and isolation is difficult. Ring topology is we again have a centralized kind of common cable, but the thing is that the common cable is in ring form, it is connected, there is no terminator required. Here we need a terminator at the end to stop the transmission, right? So here what is the advantage in ring topology? Addition and deletion of devices is easy, fault detection is easy, right? But the problem is that if this common cable fails, the entire network will fail, right? So इसकी disadvantage है। Star topology में फायदा क्या है कि we have a centralized hub, so all are directly connected to it. So transmission, if takes place, it straight away goes from sender to the hub and then from hub to the receiver. तो दो ही एंड मिलेंगे, इसमें ट्रांसमिशन जल्दी होती है, फास्टर है, राइट? डिसएडवांटेज क्या है, मोर नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट बिकॉज every device is directly connected to the hub central device, right? And moreover, if central device fails, then the computer, this whole network will not work, right? mesh topology में cables ज़्यादा लगती हैं क्योंकि यहाँ पे हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली केबल्स के साथ कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या है कि 1-to-1 कनेक्शन है, तो ट्रांसफर सबसे फास्टेस्ट है इसमें, राइट? और केबल ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, राइट? इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट, लीड्स टू डिफिकल्टी इन इंस्टॉलेशन, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स में ग्रोथ, जैसे जैसे नए ऐड होते जाएंगे तो नोड्स बढ़ते जाएंगे, इंस्टॉलेशन का पंगा रहेगा। So this tree topology is the hybrid topology. Hybrid is मतलब a combination of two things, star and bus को मिला के tree बनाया जाता है, where we have a centralized backbone cable like this, और cables पे single nodes लगाने की बजाय cables पे हम star topologies को आपस में connect करते हैं, ठीक है? एक node की जगह पे यहाँ पे hub लगा के एक star topology लगा दी, यहाँ पे hub लगाए, एक और star लगा दी, तो ये bus और star का mix up है। So the disadvantage is that installation and configuration is difficult, and if this backbone cable is damaged, then the entire network will disturb. Fine. Types of network में LAN, MAN और WAN. LAN is local area network and 1 kilometer radius तक LAN हो सकता है, 10 Mbps से लेके 1 Gbps स्पीड तक इतनी स्पीड रेंज है डेटा ट्रांसमिशन की, राइट? MAN is metropolitan, which covers up to 50 kilometers of area.
right? We can share different kind of resources, we use different kind of technologies here also, wired भी unwired भी, right? जैसे केबल टीवी जो नेटवर्क है वो इसका एग्जांपल है, fine. And then wide area network is 1000 kilometers or beyond that also. The entire world is also a wide area network. जो internet है वो wide area network का example है, right? It's not owned and managed by a single organization, it's managed by several organizations, fine. So basically WAN क्या है? WAN MAN और LAN को जोड़ के आपस में फिर एक WAN wide area network बनता है, right? So this differentiation you must be knowing. Next is devices में ये repeater का क्या यूज है? रिपीटर नाम से पता लग जाएगा, इट सिग्नल्स जो है जब वीक हो जाते हैं लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते करते, उनको दोबारा से रीजनरेट करने का, रीस्टोर करने की जरूरत पड़ती है. So for that reason we use this repeater device which reshapes and amplifies the digital signal so that it can travel a longer distance, right? क्योंकि देखो जैसे हम ये स्विच या कुछ ऐसी चीज यूज करें, तो लैन है तो 100 मीटर्स के बाद जाने के बाद सिग्नल जो है वीक हो जाएगा, उसको फिर से दोबारा अगर आगे ट्रांसमिट करना है तो उसको फिर से रीशेप करना पड़ेगा, सिग्नल्स को उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा. इसलिए हम बीच में रिपीटर्स लगाते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, देन इट कैन अगेन ट्रैवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. तो हमें बीच बीच में ऐसे रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं नेटवर्क्स में. देन व्हाट इज हब? ये आपका हब का डायग्राम है. यू विल फाइंड हब इज ए डिवाइस वेयर वी हैव RJ45 ports where different cables from different computers can be connected, right? It connects several lines. बहुत सारी लाइंस को आपस में कनेक्ट, लाइंस मतलब केबल्स को कनेक्ट करता है, राइट? तो हब में क्या होता है कि डेटा जो भी रिसीव हुआ इनकमिंग लाइंस के थ्रू, वो उसको आउटपुट लाइंस पे डाल देता है, राइट? मतलब मान लो ये कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को मैसेज करना है, तो जैसे ये कंप्यूटर से मैसेज हब के पास गया, हब ने वो मैसेज सारे डिवाइसेस, सारे पोर्ट्स को सेंड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली इसके पास भी पहुंच जाएगा. बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि डेटा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि सिंस द डेटा इज सेंट टू ऑल द मशीन्स, तो सम काइंड ऑफ डेटा इनसिक्योरिटी इज स्टिल देयर, राइट? सो ये एक हब का डिसएडवांटेज है. और एडवांटेज यही है कि कनेक्टिविटी आप किसी भी तरह के डिवाइस को हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसका बेटर ऑप्शन है स्विच. स्विच और हब दोनों एक जैसे ही हैं, बस स्विच जो है उसको हम इंटेलिजेंट हब बोलते हैं, क्योंकि उसमें दैट स्विच डज नॉट सेंड द डेटा टू एंटायर नेटवर्क. वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा रिसीवर सिस्टम है, सिर्फ उसी रिसीविंग कंप्यूटर को ही या उस डिवाइस को ही मैसेज फॉरवर्ड करता है, सबको नहीं करता. बाकी दोनों एक जैसे हैं, पोर्ट्स वैसे बने होते हैं, RJ45 पोर्ट्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं. ये है स्विच, राइट? On receiving the incoming data, it forwards it to only the single line connected to the destination node. So it only sends the data to the destination node, not to every system, every node. ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट. ब्रिज जो है वो है मल्टी पोर्ट डिवाइस एंड इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more नेटवर्क्स. जब हम दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं तब हम ब्रिज लगाते हैं, ठीक है? हब और स्विच नेटवर्क के अंदर यूज होता है कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, और ब्रिज जो है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए. तो दो लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ना है तो वी यूज अ ब्रिज इन बिटवीन, राइट? So they are also intelligent devices which exercise discretion while forwarding data to outline. So they also find out the destination system and then only data is transmitted. ये भी hub की तरह सब जगह transmit नहीं करते हैं, ये switch की तरह, and they try to identify where that data is to be sent. तो bridge जो है वो थोड़ा better format है, right?
Then another device are routers, and again they are used to connect various networks. ये भी networks को जोड़ता है. It transmits data from incoming network to the another network. ये भी एक network से दूसरे network को transmit करता है data. But इसमें advantage ये है कि it is maintaining a routing table, right? Routing table में वो destination addresses और routes को save कर लेता है, right? So उससे क्या होता है कि information is present there. So in case that similar kind of data is coming, similar kind of packet is coming, so it is easier for that device to recognize the path where the data is to be sent. तो ये एक अच्छा advantage है तो routing table maintain करना. और lastly we have gateways. Gateway और जो आपके bridges हैं, ये दोनों multiple networks को connect करते हैं, but फर्क सिर्फ इतना है कि ये gateway is used to connect to various different types of networks, whereas bridge is used to connect similar type of networks. So they connect network based on different protocol technologies, different technologies. इनकी technology अलग-अलग है. मान लो एक जगह local area network है, एक जगह wide area network है, एक जगह metropolitan area network है. इन सबको आपस में connect करना है और maybe उनमें technologies भी अलग हों. Local area में wired है, उसमें wireless है. वैसे अलग-अलग technologies के networks को आपस में जोड़ना है, तो तब हम gateway use करते हैं. अगर सिमिलर नेटवर्क्स हैं, सारी जगह लैन जी हैं, तब हम we prefer using bridge, right? तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए. गेटवे ब्रिज में क्या फर्क है, हब और स्विच में क्या फर्क है, ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आता है, right? Then we'll talk about internet and its services. इसमें emails पे है, emails other services with the help of which we can send a message, and it can be a text message or a multimedia message. Text message मतलब टाइप किया हुआ, और multimedia जिसमें आप image, audio, video वगैरह attach कर सकते हो, which can be sent, right? And how do we send it? We send it through a web mail application, right? जैसे Gmail है, Hotmail है, Yahoo है, ये कुछ वेब मेल्स एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम we can send the emails from one account to another account. अब ये दो कैटेगरीज में आती है, एक वेब मेल एप्लीकेशन, एक डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन है. वेब मेल जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, और डेस्कटॉप बेस्ड जो आप कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से आप ट्रांसमिट कर सकते हो. जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, तो दिस यू कैन इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर. यहाँ से आउटलुक में you'll see it's a similar interface like your Gmail and other online kind of applications. तो उसमें भी वही ऑप्शंस होते हैं, इनबॉक्स का क्रिएट करने का ऑप्शंस लगभग सेम है. तो सब फर्क सिर्फ इतना है कि आप ऑफलाइन मोड में भी मैसेज टाइप करके रख सकते हो. जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे then you can send that message, right? And then you can manage lot of things. You can simply create a list of all the, like it is there in that webmail application also. Like Gmail में भी हम लोग अपने contacts को सेव कर सकते हैं, ऐसे ही आप डेस्कटॉप पे जैसे आउटलुक में भी you can create contacts list also, right? So मतलब डिफरेंस ये है कि वेब मेल जो है हमेशा नेट के थ्रू ही चलेगा, और डेस्कटॉप बेस जो है उसमें आप कंप्यूटर पे बिना नेट के भी यू कैन क्रिएट अ ईमेल, बट सेंड तभी होगी जब आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये है कुछ चीजें. फिर मेल्स दे आल्सो यूज सर्टेन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, इनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. उसमें एक SMTP प्रोटोकॉल है जो सबसे कॉमन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. These rules helps the emails to work properly. POP3 is another, Post Office Protocol 3. This is another type of rule, set of rules which helps the emails to work properly, right? फिर इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन है. फाइल ट्रांसफर होता है with the help of file transfer protocol, FTP.
So if you want to transfer files from one machine to other machine through the TCP network, then we need this FTP protocol. ये जो है वो client server architecture पे based है. Client server में you know that server is in the center and clients they just give a request to the server और right, so server respond करता है request को जो भी client ने किया है, right? We can download and upload files to the servers. There's another service called as Telnet. Telnet होता है remote login कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर के डेटा को अपने सिस्टम पे ओपन कर लो. That is Telnet. Remote login इसको बोलते हैं. Terminal network. Right. So here server allows the users to work on one system to access the remote system. So if you want to access some other system at your own system, then this service is used. Right. वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमने किया था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक रेपोजिटरी है. रेपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. किस तरह का कलेक्शन? वो डेटा जो इंटरनेट पे या वेब पेजेस पे अवेलेबल है, उस डेटा के रेपोजिटरी को हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं. राइट. सो जो इंटरनेट पे जितना भी डेटा है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और लिंकिंग, हाइपरलिंक्स, इन सब के कलेक्शन को हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं. राइट. ये वो प्रोसेस है. होस्ट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट करना है वर्ल्ड वाइड वेब को. यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स में वो डेटा पड़ा है जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द होस्ट कंप्यूटर. राइट. सो दिस इज हाउ ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस. चलो, I'll end up now. You just go through these things again, and if you still have doubts and problems, you can ask. Fine. So the class is about to over. Okay, fine. Chalo then. Okay, from my side. Fine. Thank you, sir. Okay, welcome.